Yashwardhan Singh from Haryana. So he is ready to make a battle against Gaurav Chauhan from Maharashtra. Yashwardhan Singh, 2023 Asian silver medal, and 2022 we came to see that same thing, Asian gold, and 2019. And he's always seems to be looks like the promise in, boxer. Some good characterization we have seen earlier from Yashwardhan Singh, 3-time school national champion too. जी हाँ, गौरव चौहान जो कि पिक्चर स्क्रीन पर पिछली बार के क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं यूथ नेशनल्स के, और पिछले मुकाबले में उन्होंने मणिपुर के चिंगलेम्बा मोरंग को पराजित किया था। और वहीं यशवर्धन सिंह स्वर्ण पदक विजेता हैं यूथ नेशनल्स के, और सेमीफाइनल में उन्होंने चिराग सिंह सोनू को पराजित किया था पिछले मुकाबले में, जो कि उत्तराखंड के हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी जो साई का सेंटर है रोहतक में, वहां प्रैक्टिस करते हैं यशवर्धन सिंह। और अब तक जो दो मुक्केबाज इससे पहले उतरे हैं, दोनों ही स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और जहां यशवर्धन सिंह पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कोच सिल्वा कुमार ने जो उनको टिप्स दी हैं गौरव चौहान के बारे में, उनकी कमजोरियों से अवगत कराया है। देखना है उसे कितना यहां पर उतार पाते हैं फाइनल में, या उतार भी पाते हैं अथवा नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। And Yashwardhan Singh is so fast. He is a great athlete, and he seems to be the greatest competitor when he can make it against the Gaurav Chauhan. Gaurav Chauhan, youth national participation 2023 and school national medalist 2018 to 2019. So far good records, but whatever they have literally did in their fast days, it is not going to be the real story for today, because this is a grand finale, the last and that one final dance. And now you can see some that fast-paced movements. He's having a great footwork, Yashwardhan Singh. And look at the accuracy in his each and every punch. The level of striking is absolutely a massive one. And that's why he's an elite striker. और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चैंपियन ही होता है, चाहे आप कितना भी उनके सामने, चैंपियन के सामने आप शेल गार्ड की मदद ले लें, कितने भी अच्छे डिफेंस का परिचय दें, लेकिन जो चैंपियन होता है मुक्केबाज, वो अपने पंचेस को सटीक टारगेट एरिया पर हिट करने का मौका निकाल ही लेता है। वही कुछ देखने को मिला इस बार यशवर्धन सिंह द्वारा। Gaurav Chauhan, he's just listening and he's just observing each and every footwork of Yashwardhan Singh, and you can see some progress from Yashwardhan Singh then compared to the last bouts that we came to see in the few days back, because this is his finals, and so much of preparations he would have been literally went in the practice sparrings. That is what I was about to say right now. So now Gaurav Chauhan is having a little bit of reach and height advantage than the Yashwardhan Singh. So what about this battle? यशवर्धन सिंह ने दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरीके से मुकाबले लड़े जाते हैं, और उसी की उन्होंने मिसाल कायम की। बहुत फिटनेस लेवल उनका बहुत जबरदस्त। आप देख सकते हैं कि लगातार उन्होंने जो हमले बोले हैं अटैकिंग मुद्रा में, पीछे हटते हुए भी कई बार उन्होंने अच्छे प्रहार लगाए जो टारगेट एरिया पर हिट किए हैं। और ये मानना होगा कि ये खिलाड़ी भविष्य का चैंपियन है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तो खेलो इंडिया के यूथ गेम्स में चमकने की बारी है, जहां उन्होंने अपनी मौजूदगी का बहुत अच्छे तरीके से अब तक एहसास कराया है। This is what the each and every boxers who is having some great reach and height, they will be having the advantage to throw the punches like this, and the foot movements, the footwork. This is what exactly I'm just talking about towards the ringside. Gaurav Chauhan, good hold, and Yashwardhan Singh is not ready to leave Gaurav Chauhan right now. And here comes the bell sound after this round one. Here we can look some of the great work in the replay. वाकई बहुत अच्छा लगता है जब आप बिल्कुल चैंपियन के अंदाज में कोई मुकाबला लड़ते हैं, केवल परिणाम के लिए नहीं लड़ते। परिणाम के लिए लड़ना ऑब्वियस है कि एक खराब खेलेगा, एक अच्छा खेलेगा, कई बार दो अच्छा खेलकर भी जो ज्यादा अच्छा खेलता है जीत उसी की होती है। लेकिन यशवर्धन सिंह ने वाकई प्रभावित किया, और गौरव चौहान जिन पर थकान का असर भी दिखाई दिया पहले ही राउंड में, क्योंकि बहुत ज्यादा अग्रेसिव लड़ रहे थे उनके अपोनेंट यशवर्धन सिंह। और ये लाइट वेल्टर वेट वर्क का मुकाबला है, जहां से एस जयराम 1986 के एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे थे। वी संतोष कुमार ने 2010 के ग्वांगझू एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। ये वही वजन है लाइट वेल्टर वेट वर्क,
जहां पर इस समय यशवर्धन सिंह और गौरव चौहान मुकाबला लड़ रहे हैं और यशवर्धन सिंह ने 5 जजेस को प्रभावित किया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। After this round 1, now we have seen the scores. So still 4 more bouts which is left in this grand finale. Yashwardhan Singh, he would have listened to the advice from his corner. The one thing which I'm pretty much happy to, see from Yashwardhan Singh is his footwork, his accuracy level in his striking. What a way to show his full athleticism towards the Gaurav Chauhan. And he knows exactly where Gaurav Chauhan is going to, land his strike. और आप देख सकते हैं बहुत ही रोमांचक संघर्ष देखने को मिल रहा है गौरव चौहान द्वारा भी बीच-बीच में, और ये बहुत अच्छा साइन है मैं समझता हूं, क्योंकि आप भविष्य के चैंपियन बनने के लिए आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कराना होगा। क्योंकि अगर आप वन साइडेड तरीके से हारते हैं तो उसके बाद आपका जो मनोबल है वो टूटता है, और उस मनोबल को बिल्कुल भी नहीं टूटने देना, यही कुछ इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक ब्रह्म वाक्य है, और इसको निश्चित तौर पर आधार बनाकर लड़ना होगा, ध्यान देना होगा। और यहाँ यशवर्धन सिंह तारीफ के हकदार हैं, जिन्होंने बहुत अटैकिंग मुद्रा में इस मुकाबले को लड़ा है। They are the formidable contenders against each other. The anticipation in arena is electric as the skilled boxers step into the ring for a showdown. This is the final showdown. As I mentioned earlier, Gaurav Chauhan, he's just still observing the Yashwardhan Singh. But only one thing which I wish to say right now, this is not the time to observe. This is the time to land the punches. One result, one weight in Venkatamangalam in Melkote in Chennai. The future is yours, and they are the nation's most promising boxers. The young boxers. Yashwardhan Singh would have literally went for that uppercut, but slightly missed. Gaurav Chauhan. He's reading. Time for the determination, the strategic power, and the relentless effort have secured a well-deserved win already for the red corners and for the blue corners that we came to see in the last 2 to 3 bouts back. And this is absolutely a प्योर नरेशन। जी हाँ बिल्कुल, और मैं कहूंगा कि यहाँ मुकाबले में दिल जीता है यशवर्धन सिंह ने। ये देखिए ताबड़तोड़ अंदाज देखिए, कदमों का इस्तेमाल देखिए, इनका फिटनेस लेवल देखिए। यदि अपोनेंट कोई हमला करने आता भी है तो डिफेंस देखिए। ये सारी खूबियां इस खिलाड़ी में दिख रही हैं, और मैं समझता हूं कि पिछले साल से लेकर अब तक इस खिलाड़ी ने अपने खेल को में बहुत सुधार किया है। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी साई सेंटर रोहतक में अपनी कला को चमकाया है, और यही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में इसी लहजे से लड़ने की जरूरत होती है, जिसका मुजाहरा आज देखने को मिला यशवर्धन सिंह द्वारा। गौरव चौहान के खिलाफ हरियाणा और महाराष्ट्र के मुक्केबाजों के बीच में अंतर बहुत कम है, लेकिन यहाँ यशवर्धन सिंह ने दिखा दिया चैंपियन ही होता है, चाहे उसके सामने कोई पिछला चैंपियन आ जाए या कोई भी चैंपियन आ जाए, उसे वो ध्वस्त कर सकते हैं अपनी कला से। और वही गौरव चौहान के लिए भी मैं समझता हूँ एक अच्छा खासा लर्निंग एक्सपीरियंस है, और आप देख सकते हैं इस मुकाबले में, ये देखिए ताबड़तोड़ हमले उनके, और जो जवाबी हमले होते हैं उससे भी वो विचलित नहीं होते। स्ट्रेट पंचेस का अच्छा कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट पंचेस लगाते हैं और बीच बीच में हुक भी लगाते हैं, ये इनके खेल को विशिष्ट बनाता है। The crowd is in the edge of the seats, eager to witness this clash of titans. After the second round, Yashwardhan Singh is 5, Gaurav Chauhan is 0. So which means, don't go anywhere. Gaurav Chauhan is telling that, boss, don't judge a book by its cover. I can go for this in this round. Let's see what is the story as of now. And Yashwardhan Singh is listening to the coach, that beautiful words from his corner. Manoj, 5-0. What is going in your mind right now? देखिए अभी तक तो यही है कि यशवर्धन सिंह पूरी तरह से इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं,
लेकिन मजा तब आएगा जब गौरव चौहान की तरफ से भी कुछ ऐसे ही ताबड़तोड़ हमले बोले जाएंगे और वो जो टारगेट एरिया पर हिट भी करेंगे तो मुकाबला रोमांचक होगा, क्योंकि वन साइडेड मुकाबले कोई नहीं देखना चाहेगा। लेकिन यहां पर अगर भारत को एक शक्ति बनाना है, महाशक्ति बनाना है, तो आपको दोनों ओर से फाइट देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी है साई सेंटर रोहतक, यहाँ पर विशेष हो, लैमिंग हो, यशवर्धन सिंह हो, अंकुश हो या आर्यन कुमार, 5 मुक्केबाज यहाँ फाइनल खेल रहे हैं इस एकेडमी से, और उनका एक अलग ही रुतबा दिखाई दे रहा है, एक अलग ही हैसियत दिखाई दे रही है मुक्केबाजी में, क्योंकि 2 मुक्केबाज अब तक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और यशवर्धन सिंह भी अपना स्वर्ण पदक का अभियान बहुत अच्छे तरीके से छेड़े हुए। और यहाँ लगातार ये देखिए हमले, ताबड़तोड़, कॉन्फिडेंस ताबड़तोड़, और भला एक मुक्केबाजी में किसी भी मुक्केबाज से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। This is the Cairo India Youth Games final day in boxing as we embark on the final day. This is charged up with the anticipation and the excitement. That last 1 minute in this final round, Yashwadhan Singh knows clearly what he wants to do, and the pure execution that we can to see from both the rounds, where Gaurav Chauhan is still looking to dominate Yashwadhan Singh. This is the pure test for Gaurav Chauhan. This 53 seconds, it is going to be the story for him. लेकिन ऑल आउट जाना होगा अगर परिणाम को बदलना है गौरव चौहान को। लेकिन एक लर्निंग एक्सपीरियंस सीख कर जाएंगे इस मंच से गौरव चौहान। यशवर्धन सिंह की पंचेस एबिलिटी का हर कोई यहां पर कायल हुआ। दोनों का ऑर्थोडॉक्स स्टांस डिफेंसिव मोड में दिखाई देते हुए गौरव चौहान, लेकिन अटैकिंग एक बार फिर से यशवर्धन सिंह, उन्होंने साबित कर दिया अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और इसी की बदौलत उन्होंने पहले 2 राउंड अपने पक्ष में किए हैं। और यहाँ शेल गार्ड को भेदने का लगातार प्रयास करते हैं यशवर्धन सिंह। After the boxer aggressively throws a series of calculated punches that we have seen from the first 2 rounds, and this is the last round, the final few seconds, aiming to assert the dominance, and the ring announcer is waiting. So, which means we have to still wait for that 1 or 2 seconds, and here comes the bell sound. Controlling the tempo of the fight from the outset, where one boxer is throwing a punch in the round 1, trying to dominate Yashwadhan Singh, that one name. Can I tell in the way of Ian Bishop, the way Ian Bishop calls for the 2016, the West Indies winning momentum? Remember the name Yashwadhan Singh. जी हाँ, बिल्कुल लिख लीजिए, कहीं इनका तस्वीर खींचकर रख लीजिए। हो सकता है ये खिलाड़ी आने वाले समय में आपको एशियाई खेलों का में वो काम कर दे जो आज तक कोई मुक्केबाज कर नहीं पाया है लाइट वेल्टर वेट वर्ग में, क्योंकि ये एक ऐसा वजन है जिसमें भारत को कभी भी स्वर्ण पदक नहीं मिला, सिवाय एस जयराम जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 1986 में, संतोष कुमार ने 2010 में सिल्वर जीता था। यहाँ पर स्वर्णिम सफलता हासिल करने में कामयाब यशवर्धन सिंह, इन पर बहुत बड़ी उम्मीदें। पिछला मुकाबला सेमीफाइनल भी इन्होंने सर्वसम्मत फैसले से जीता था और यहां भी यूनानिमस डिसीजन। और यशवर्धन सिंह के बुलंद इरादे और भारत की उम्मीदें जगी हैं। अगर कोई मुक्केबाज इस तरह का प्रदर्शन करता है, चैंपियन के अंदाज में जीतता है, तो उसका मजा कई गुना बढ़ जाता है और ये तस्वीरें खिंचाने की एक होड़ लग जाती है चैंपियन के साथ। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अपने पांव जमीन पर रखने होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि युवा खिलाड़ी हवा में उड़ने लगता है, वहीं से उसके पतन की कहानी भी शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, स्ट्रेट पंच खूबसूरती के साथ, राइट क्रॉस के साथ राइट हुक भी उन्होंने पहले लगाया और यहाँ दोनों तरफ से अटैक देखने को मिले थे। और यहाँ राइट हुक खूबसूरती के साथ पंचेस सीधा टारगेट एरिया पर हिट करते हुए शेल गार्ड के बावजूद प्रहार, और इस तरह से विजयश्री का ऐलान हुआ यशवर्धन सिंह के पक्ष में। Another one more win for Haryana in this grand finale. The previous one is